You people can see the screen, right? Yes, sir. Hello. ये यहाँ Yes, पे एक क्वेश्चन है. You people can see the question, right? Here. yes. हाँ. तो अभी अरे यार, it's not responding. Wait, huh? So this is the question which we have. Who's whistling? So see, the question here is, the diagram shows a heating curve of a sample of compound X. Okay, this is the curve here. Here on this y-axis you have the temperature, and here you have the time. So there is a relation between. Hello. Yes, sir. Yes, sir. There, Hello, sir. there is a relation between your temperature versus time of any particular compound when it is being heated, and the temperature is running from 15 degrees Celsius to 80 degrees Celsius, and as the time is passing by, there is some effect on the temperature. So these are the questions which you have based on the based on the physical state, or based on the state change of that particular compound. So you have points A, B, C, D, E, and F. Okay, you Hmm. people can see it on here. You okay? Okay. So it is saying, is X a solid, a liquid, or gas at room temperature of 20 degrees Celsius? It is a The gas. No liquid, liquid. Hello. Yes, sir. no. So tell me, is it a gas or liquid, or what it is? Sir, it's a liquid Okay, and why it's liquid? because of its boiling, its melting and boiling point. See, this is basically the heat curve. Okay, this is Yes. basically your heat curve, and you know that as initially whenever the temperatures are low, then a substance is having the forces of attraction. It's all about it has to deal with the forces of attraction. Okay, Okay. Okay. do you people recall something similar curve you people must have seen in your first chapter, that is the particulate nature of matter, wherein there is a similar curve, a heat curve has been drawn, right? Yes, sir. The heating Yeah. and the cooling curve. So it's a liquid. That is correct. So do one thing. Just now, what is the second part of the question? Write an equation for the equilibrium which exists in region BC. Can you write the equilibrium? सर वो आफ्टर मेल्टिंग का वो है. हेलो सर. बोलो बोलो. So आफ्टर सबसे पहले मेल्टिंग. आपको क्या, सबसे पहले what you people have to give. Hello. यस सर. In the region BC. Hello. यस. Yes. ये आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा ग्लिच आ रहा है. आई डोंट नो हु इट इज, बट देयर इज लॉट ऑफ ग्लिच इन द नेटवर्क. Hello. Hello. हेलो. यस सर. Hello. हेलो. यस सर. Hello. हेलो सर, शायद आपका नेट स्लो है.
No, my net is working fine. I think वो ओस्मान का कुछ नेट का इशू है, I suppose. Osman, you can hear me? Hello. हाँ, Osman का नेट का इशू. Anyways, Omar, so the thing is, you have to write a reverse. You have to whenever you write a equilibrium reaction. So remember, you have to put a reversible sign to it. Okay? Yes, sir. So initially, if it is a so the state of the compound, no, the state of whatever compound it is. Say if it is solid, then in the case of that region, it has to be solid on the reactant side and it has to be solid on the product side. Okay. Yes, sir. So that physical state has to be same. Hmm. Yes, sir. So X, how you will write the equation? Between liquid, between liquid, And gas. liquid and solid, between liquid and solid, it is the region wherein it is being changed. Since it is liquid, so it is changing from liquid to solid state. Okay, since Yes, it is sir. changing Yes. from liquid to solid state, to what you have to write? You have to write X followed by the state L and the reversible sign. You know how to put the reversible sign? One arrow up, another arrow down in the opposite directions. You people know Yes, that? sir. Yes, yes. And then what you have to do? Then on the other side X, you have to put it in solid state. So shall I write it for you? Are you people understood? Yes. You people understood? Osman, you understood the question? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And then what is the next question? What is the next question it is saying? Name the change of state which occurs in the region DE. You people can see DE. From D to E, what it is happening? The bonds are being broken and there is a change which is about to happen. And then since it is in which state? DE. What is happening in the region DE? Sir, physical change. वो solid Exactly, but what? नहीं, अभी तो लिक्विड में हो गया है, वो सॉलिड से लिक्विड में, इट इज ऑलरेडी लिक्विड, राइट? Yes. इट इज ऑलरेडी अ लिक्विड. अभी उस रीजन में क्या हो रहा है आपका? अभी वो लिक्विड से ना अभी वो बॉइलिंग की तरफ आगे जा रहा है. Yes. तो सर Okay? उसको क्या बोलेंगे हम? यू कैन से कि बीच में आपके बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो रहे हैं और आप जो है इवेपोरेशन की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो. बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया है, बॉइलिंग होने की वजह से Yes, फिर sir. आपका जो है इवेपोरेशन स्टार्ट हो रहा है. ठीक है? when you are going in the forward direction. Now if you are coming in the backward direction, what is happening? Condensation is happening. Okay, when you go in the forward direction from D to E, then what is happening? Boiling is happening. And when you come from E to D, condensation is happening, reversible. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Acha, what is the next question? Explain how the curve shows that a pure sample of compound X was used. How can you justify that? How can you justify that, a pure sample of compound X was used? Hello? Hello? Yes, Omar, sir. Hello. Osman, how you people can justify that it was a pure compound which was being used? Yes, sir.
If do you people have any answer to it? Hello? Osman, I think there is some issue with your internet because your voice is cracking. Omar, you can hear me, right? Yes, sir. हाँ, तो ओस्मान के नेट का इशू है, ठीक है? तो अभी बताओ, मेरा क्वेश्चन था कि आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि इट इज आस्किंग फॉर अ जस्टिफिकेशन, राइट? इट इज सेइंग दैट हाउ यू विल जस्टिफाई दैट the curve which is here above, the curve, it shows that a pure sample of compound X is used. Any idea? Sir. हाँ. Explain how you can see the question, right? Explain how the curve shows that a pure sample of compound X was used. आंसर कुछ है आइडिया इसका? हेलो? The curve shows that a pure sample of compound X was used. Sir, क्योंकि उसका boiling point और melting point exact वही जगह पे जहाँ पे होना चाहिए था. Exactly. Very good. किसने आंसर दिया? ओस्मान ने या उमर ने? उमर. सर मैंने. Okay. उमेर ने. Omer, so what did you said? Osman, did you understood? ये एक्सरसाइज आपने कर रखी है क्या चैप्टर 1 की? नहीं सर. Then how you people are answering so quick? Huh? Hello? Yes Hello? sir. Yes हाँ, sir. ये एक्सरसाइज आपने पहले करी हुई है क्या ये एक्सरसाइज, ओमर ओस्मान? नहीं सर. तो फिर इतनी जल्दी आंसर्स आ रहे हैं? सर मतलब हेलो? yes sir. So if you people can hear me, ओमर अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आई एम सेइंग आपने जो आंसर दिया इट वाज करेक्ट. इट इज आपका जो बीसी में जो रीजन है ना, बीसी रीजन में वहां पे सॉलिड आपका मेल्ट हो रहा है, ठीक है? Yes, और जो डी से ई का जो रीजन है वहां पे आपका लिक्विड बॉईल हो रहा है और इट Yes. इज हैपनिंग एट अ वन फिक्स्ड, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही हो रहा है. इट इज हैपनिंग एट वन फिक्स्ड और अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. ओके? Yes. So in the region BC क्या हो रहा है आपका? Solid is melting, okay? And why the temperature is वो flat curve क्यों आ रहा है आपका? Flat region क्यों है बीच में? क्योंकि Because सर heat वहाँ energy पे में कोई change नहीं हो रहा है. हाँ. और heat energy आपका bonds को तोड़ने का काम कर रही है. जो bonds है ना, उन bonds को तोड़ने का काम कर रही है heat energy. इस वजह से temperature में कोई rise नहीं हो रहा है. इसलिए उस पर्टिकुलर एरिया में आपको फ्लैट कर्व मिल रहा है. फ्लैट कर्व आपको इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में आपका जो भी बॉन्ड्स होते हैं ना, वो बॉन्ड्स अभी टूट रहे होते हैं. जब बॉन्ड्स टूट जाते हैं उसके बाद आपका एक जगह से दूसरे जगह में स्टेट चेंज होता है और इट्स ऑल अबाउट द काइनेटिक्स. फिर वो मूवमेंट आपके स्टार्ट होते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है ऐसा करके. तो द आंसर इज इन द रीजन बीसी जो आपका सॉलिड मेल्ट हो रहा है और इन द रीजन डीई आपका लिक्विड बॉईल हो रहा है और ये दोनों के दोनों ही आपके स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट पर हो रहे हैं. ओके? हेलो? Yes sir. It is happening at a fixed point of 15 and 80 degree Celsius. Okay? Yes sir. So it is happening at a very fixed and a sharp point, at a fixed point जहां पर ये चीजें हो रही हैं. तो चलो, तो this is clear to you people, right? So what is the next question which
Give me 2 minutes, huh? What is the next question we have? Now here, can you see a compound X is a colorless liquid at room temperature? ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. दिख रहा है. ओस्मान का कुछ तो नेटवर्क का इशू है. I don't know what the issue is, but he cannot hear what I'm saying. Okay, कुछ तो उसका इशू है नेटवर्क का. ये दिख रहा है ना आपको? कंपाउंड X इज अ कलरलेस लिक्विड. क्या है उसका स्टेट? लिक्विड है, कलरलेस है एट रूम टेम्परेचर. ओके, हेलो. Yes, sir. हाँ, तो अभी sample of pure X was slowly heated from -5 degrees Celsius, which is below its melting point, okay, to temperature 90 degrees Celsius, which is above its boiling point. Its temperature is measured every minute and the result is represented in the graph. Okay, so the first question is complete the equation for equilibrium present in the region BC. How you will write the equation? अभी इससे ठीक पहले एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने. इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे लिखेंगे? सर इक्विलिब्रियम की ये क्वेश्चन दिखा आपको कि उस वक्त वहां पे वो लिक्विड मतलब सॉलिड टू लिक्विड में मतलब फॉर्म हुआ था. वेरी गुड. तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? x के साथ नीचे l. ओके, x के साथ l आ जाएगा इन द रीजन BC. यस ठीक है, ये दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको? यस सर, दिख रहा है. चलो, अभी नेक्स्ट क्या है आपका? What is the significance of temperature T degree Celsius? Where is T degree Celsius? This is your T degree Celsius. Yes, right? Yes. So what is the significance of this? Can you tell me what is the significance? What does it signify? ये क्या indicate कर रहा है T? उसका melting boiling point. Sorry. ये melting point. हाँ. Room temperature. नहीं, सही से बोलो, वापस से बोलो. सही. फर्स्ट जो आंसर दिया था that was correct. It is the melting point. Yes. उस पॉइंट पर वो आकर के उसके सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं हाँ नहीं टूट गए हैं. हाँ, टूट गए करके फिर आपके अभी नया चेंज स्टार्ट होने जा रहा है. दैट इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ X. यस. Osman, you can understand? Osman? Hello? Yes. Sir, Usman. Hello, Usman. Hello. 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 हेलो उस्मान. यस सर. उस्मान का कुछ तो नेट का इशू है. उस्मान, देयर इज सम इशू विद योर इंटरनेट बिकॉज आपका वॉइस ना, आपका कुछ भी मेरे को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो. चलो, इफ यू कैन हियर मी, आई एम यू नो, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग बाद में देख लेना. यस सर. हेलो. चलो, एनीवेज ओमर, यू कैन हियर मी. उस्मान, इफ यू कैन हियर मी, जस्ट टाइप अ यस टू इट, है ना? सो आई विल कंटिन्यू. तो ये अभी ये दिख रहा है आपको, ये पेज?
हेलो Yeah. ओमर। यस सर। हाँ, अभी व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस? T डिग्री सेल्सियस, ये है आपका, ये T डिग्री यहाँ पर है, राइट? दिस इज T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, ठीक है? ओके। और ये किस चीज का कर्व है? इफ समबडी आस्क यू दिस इज अ कर्व ऑफ कंपाउंड व्हाट? सर क्या हुआ? ये कर्व किस चीज का है? सर ये कर्व टेम्परेचर का है। नहीं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का है, बट ये मतलब किस कंपाउंड का है? अच्छा, और आपको अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही है उस्मान? अरे ओमर, आपको कौन सी स्क्रीन दिख रही है अभी? सर इस पे स्टार्टिंग में लिखा है कंपाउंड एक्स इज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इट इज समथिंग लाइक पानी का है ये, हाँ बिकॉज 90 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस और ये सब 5 - 5 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा टेम्परेचर्स आपको जो है याद रखने पड़ेंगे। एनीवेज, तो अभी नेक्स्ट व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज आस्किंग? What is the third question, Omar? What is the physical state of compound X in the region EF? सर। In the region EF, EF रीजन दिख रहा है, वो जो खड़ी सी एक लाइन है EF, EF में आपका Yes, भी sir. क्या है स्टेट? यस सर EF में स्टेट है गैस। हाँ, गैस। वेरी गुड। इट इज गैसियस या वेपर इन नेचर, ठीक है? ओके। यस सर। अभी टेल मी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What would be the difference in the region BC if an impure sample of X had been used? अगर X का जो सैंपल है, अगर हमने उसको प्योर की जगह अगर हमने इम्प्योर यूज किया होता, तो BC में क्या फर्क पड़ता? BC जो ये रीजन है BC, उसमें क्या? ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता। नहीं, तो सर वो होता ही नहीं। वापस से बोलो। लाइन, ये जो लाइन है, जो रीजन है, वो आपकी एक तो हॉरिजॉन्टल नहीं मिलती, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता, और Yes. जो जो उसका जो ये है मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है, वो जो है वो लाइन थोड़ी नीचे होती, ठीक है? और वो हॉरिजॉन्टल नहीं मिलती आपको, वो हॉरिजॉन्टल नहीं मिलता, वहां पर आपको कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस दिखता। ये ऐसे एकदम खड़ी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलती, इसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस मिलता। और ये जो इसका ये जो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है, ये पहले ही मेल्ट या फ्रीज होता, ठीक है? थोड़ा सा नीचे मिलती है आपको लाइन आपको थोड़ी नीचे मिलती, और साथ में ये स्ट्रेट नहीं मिलती, आपको थोड़ा सा उसमें डिस्टरबेंस मिलता, ठीक है? ओके। ओके। उस्मान, आपको समझ में आया? Yeah. हेलो Hello. हेलो। यस सर। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Compound X is a hydrocarbon. It contains 85.7% of carbon. Okay. The mass of 1 mole of X is 84 gram. What is the percentage of hydrogen in the compound? And also you have to write the empirical formula of X. How you will do that? And then you have to write the molecular formula. You people know this? यस सर। कैसे करेंगे? रिमेनिंग परसेंटेज कैसे निकलेगा? टोटल कार्बन, अगर टोटल कोई चीज 100% है, इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज 100%, तो 100% में से कितना परसेंट कार्बन है? 85.7।
और बाकी जो बच जाएगा फिर वो क्या बचा? तो वो बचा हाइड्रोजन, हाँ है ना? हाँ वो कितना बचा? व्हाट यू हैव डन इफ यू हैव सेड दैट टोटल 100% योर टोटल कंपाउंड का जो भी आपका क्या बोलते हैं हम इसको यू नो जो भी उसका वेट है, सपोज आई हैव सेड दैट इट इज 100 ग्राम्स, ओके? उस 100 ग्राम का 85.5% कार्बन है, तो 85.5% ऑफ 100 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच? If you have a total compound जिसका weight से let us say कि उसका जो total weight है वो 100 ग्राम है, right? हाँ तो 85.7% of 100 ग्राम is equal to how much? It is 85.7 85.7 ग्राम। तो अभी 85.7 ग्राम अगर आपका कार्बन है तो रिमेनिंग क्या हुआ? रिमेनिंग हाइड्रोजन बचा, राइट? हाँ तो कितना हो गया? 100 ग्राम, total 100 gram of the compound minus 85.7 gram of carbon, which will give you हाइड्रोजन का 14.3 ग्राम 14.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे वो पूछा है परसेंटेज, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा हाइड्रोजन का? 14.3%। 14.3%। कैसे निकाला? जो 100 माइनस क्वांटिटी आई, हाँ, अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी क्या है आपकी? 100 ग्राम, एंड देन इफ यू हैव टू परसेंटेज निकालना तो इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इट इज 14.3। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हेलो ओस्मान, समझ में। डिड यू अंडरस्टूड? हेलो यस सर, अंडरस्टूड। Yes. अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है बोल रहा है आपको? उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले उसका जो कैसे निकालते हैं हम लोग? पता नहीं सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं आता निकालना? नहीं। अच्छा, तो what we will do, we will have a separate topic for it to calculate the empirical formula. if empirical formula के लिए तो फिर आपको फिर एक दो क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ा आप लोगों ने या याद नहीं आ रहा? हेलो हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? डू यू पीपल नो व्हाट एम्पेरिकल फॉर्मूला इज? नहीं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ना, कि जो भी आपका कंपाउंड है, जो भी आपका कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो भी उसके एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उस कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो भी आपके कंपाउंड हैं उसमें जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनका जो भी एक सिंप्लीफाइड रेशियो आएगा कि वो किस रेशियो में, वो एलिमेंट्स किस रेशियो में कंबाइन हुए हैं और आपको पूरा का पूरा कंपाउंड एज अ होल बना करके दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ओके। समझ में आया? व्हाट यस इज सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला? हेलो, यस सर, समझ में आया। बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सर
हेलो 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 मोते Hello. there is some issue with your network. You people can see me clearly, right? मुझे तो सही से सुनाई दे रहा है ना? Yes. नहीं आपको मेरी आवाज नहीं आ रही सही से? आ रही है सर। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला वो होता है कि जो भी कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल C2H6, सपोज दैट दिस इज वन कंपाउंड, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये किस रेशियो में है? रेशियो 2:6 के हैं, क्योंकि इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन के लिए हैं और 6 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिए हैं, राइट? दिस इज फॉर एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन यू। तो ये जो रेशियो आया ना कि वो जितने भी एलिमेंट्स किस रेशियो में इन्वॉल्व हो रहे हैं उस कंपाउंड को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, so empirical formula basically represents the lowest whole number ratio of elements in a compound. What does empirical formula represent? It represents the lowest whole number. वो whole number होना चाहिए, वो 1.5 रेशियो 1.6 ऐसा करके नहीं होना चाहिए, वो smallest whole number होना चाहिए, like 2:6, 2:3, 1:4, 6:8 ऐसा करके वो होल नंबर। और जो सबसे छोटा जो होल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में होने चाहिए एलिमेंट्स के, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। हेलो, यस सर। समझ में आया एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? हेलो हेलो हेलो, यस सर। उस्मान का लग रहा है इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है। तो जो सबसे जो देखो, 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ये पता है कि इसका जो मास नंबर है ना वो क्या है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का अगर आपको उसका मास नंबर पता है, ठीक है, हाँ सर। तो आप क्या करोगे? अगर इफ यू नो द मास नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 11। सही से बताओ। 16। नहीं। 12। यस। किसने बोला, उमर ने या उस्मान ने? उमर। हाँ, तो वो 12 होता है, ठीक है? तो ये अगर कभी भी वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है कि भाई इतना परसेंट कार्बन यूज हुआ है, तो ऑल यू हैव टू डू इज, ये जो परसेंटेज की वैल्यू है, ये जो परसेंटेज में दिया हुआ है ना वैल्यू, सिंपल जो तरीका अगर है, अगर सिंपल तरीका अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है? इट इज 85.7%, ठीक है? इट कंटेन्स, वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो द amount in percentage divided by the atomic mass of the element, ठीक है? यस सर। द अमाउंट इन परसेंटेज लिख लो कहीं पर। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है आपको कोई भी एलिमेंट, अगर परसेंटेज वैल्यू दी है किसी भी एलिमेंट की ऑफ अ कंपाउंड, और अगर आपको बोलता है कि यू हैव टू फाइंड द empirical formula, तो ये जो परसेंटेज वैल्यू है, that percentage value you have to divide it by the atomic mass number of the element. तो 85.7% you have to divide it by the atomic mass of carbon, which is 12. So 85.7 divided by 12 will give you how much? It will give you 7.14, ठीक है? और सिमिलरली आपका हाइड्रोजन कितना बचा? टोटल 100% में से 85.7% कार्बन है, तो रिमेनिंग जो परसेंटेज है दैट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन।
तो कितना परसेंटेज हाइड्रोजन है? 14.3%। अच्छा, व्हाट डिड आई हैव जस्ट सेड नाउ कि आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन या फिर आपका जो क्वांटिटी अगर वो एलिमेंट की परसेंटेज में दी हुई है और आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो उस केस में परसेंटेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास. सो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? हेलो, Yes, sir. what is the atomic mass of hydrogen? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? Okay. अभी पीरियोडिक टेबल लिखा था ना? हेलो, वन होता है, वन होता है, रिमेम्बर? हेलो, सर आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ मेरे को आवाज आ रही है. तो उसका कितना होता है? मास वन होता है. तो अभी मैंने क्या बोला? परसेंटेज कितना परसेंट आपका हाइड्रोजन है? 14.3%. तो 14.3% डिवाइडेड बाय वन, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 14.3. हाँ. तो अभी मैंने क्या बोला? आपका कार्बन का एक वैल्यू आ गई और हाइड्रोजन की एक वैल्यू आ गई. अब इनको जब आप रेशियो में करोगे, रेशियो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब कार्बन का न्यूमरेटर, कार्बन की वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी और इसकी हाइड्रोजन की वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी. तो क्या आएगा? जो सिंपलेस्ट जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 7. मतलब जो होल लोएस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? लोएस्ट होल नंबर 7 हो जाएगा इन द केस ऑफ कार्बन, एंड इन द केस ऑफ hydrogen it would be 14. So 7 divided by 14, numerator upon denominator, which is 7 by 14, which will cancel out and give you 1:2. So what is the ratio? The ratio is 1:2. Okay. Okay. Hello. So the ratio is 1:2. And what is empirical formula then? अभी empirical formula क्या निकला आपका? 1:2 के रेशियो में सी की जगह 1 लिख दो. मतलब एक एलिमेंट कार्बन का है और उसके रिस्पेक्ट में दो एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं, तो CH2. ओके, CH2. ठीक. चलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला देन वी नीड टू वर्क ऑन इट. ठीक है, इफ यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड. तो अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर कैसे करते हैं, फिर चलो वी विल. अच्छा, अभी ये क्वेश्चन दिख रहा है. Yes, sir. Different gases diffuse at different speed. What is meant by the term diffusion? What property of gas molecule affects the speed at which it diffuses? ये दिखा क्वेश्चन आपको? Yes, sir. हाँ, क्या है उसमें? उसका क्या आंसर होगा? What is meant by diffusion? Diffusion, sir. जैसे Diffusion is basically what? सर डिफ्यूजन वो एक जब हाई कंसेंट्रेटेड एरिया से नहीं वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ हाँ सही बोल रहे हो. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन. सब कुछ जब, कुछ मॉलिक्यूल हाँ, सेमी परमिएबल, इससे क्या बोलते हैं वेरी गुड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से. तो यहाँ पे सेमी परमिएबल हम मेम्ब्रेन नहीं यूज करेंगे. वी कैन सिंपली से कि इट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू फिल अ पर्टिकुलर अवेलेबल वॉल्यूम. किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को फिल करने के लिए, मतलब एक ऐसा बकेट है जिसमें पानी ज्यादा है और एक ऐसा बकेट है जिसमें पानी कम है, और अगर आप बीच में इसको पाइप से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? जो हायर कंसंट्रेशन का जो बकेट जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है पानी का, उसमें उसमें हाई हाई वॉल्यूम है, उसमें हाई कंसंट्रेशन है, तो वो क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से काम
पाइप के थ्रू लो कंसंट्रेशन पे चला जाएगा। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू फिल any available volume from a region of high concentration to a region of low concentration। ठीक है, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? हेलो, मैंने। अरे ओमर है कि उस्मान? हाँ, बिकॉज ओस्मान को तो आज कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, मे बी उसका इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है। ओस्मान, इफ यू कैन हियर मी, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा फॉर अ व्हाइल, because I'm not sure if you can hear me or you cannot not hear me. I don't know. Osman, you can hear me, right? Hello? Yeah. Because your video is so clear, but there is lot of glitch in your voice. ठीक है, तो what is the next question? What is the next question which is asking? What property of a gas molecule affects the speed at which it diffuses? गैस मॉलिक्यूल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है? वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है गैसेस की? वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगी? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज मूवमेंट। तो मूवमेंट में क्या चीज इन्वॉल्व होता है? आप किस चीज को मूव करते हो? हेलो ओमर, एनी आइडिया? नो सर। अच्छा, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। तब ये बताओ कि जो चीज भारी है वो जल्दी मूव करेगी या धीरे से मूव करेगी? जो हल्की चीज है वो फटाफट मूव करती है, धीरे धीरे मूव करती है, और जो भारी चीज होती है वो जल्दी मूव करती है, धीरे मूव करती है? ये पहले बताओ मेरे को। हेलो। यस सर। हाँ बताओ। पता नहीं। अरे कैसे नहीं पता? भारी चीज को अगर, अरे ऐसा समझो ना, एक छोटी बॉल है, उसको आप पैर से इजीली मारोगे क्योंकि उसका मास कम है, राइट? और अगर मैंने उस वहीं पर अगर एक लोहे की बॉल रखी तो क्या उसको पैर से मार करके इजीली फेंक सकते हो, लोहे की बॉल और प्लास्टिक की बॉल को? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की बॉल का मास कम होता है और लोहे की बॉल का मास ज्यादा है। सिमिलरली जो पार्टिकल जो हैवी होते हैं उनका मास ज्यादा है, और जो पार्टिकल्स जो हल्के होते हैं उनका मास कम होता है। तो जो कम मास के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा दूर तक और ज्यादा जल्दी और बहुत इजीली जा सकते हैं, राइट? और वही जो भारी जो चीजें होती हैं वो बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। So what is that particular property of gas molecule? It is nothing but the mass of the particles, the mass of the particles of the gas molecules, which affects the diffusion. Diffusion is what? High concentration से low concentration में आना। तो आना जाना is what? Movement। तो जो भारी molecules होंगे वो उतना जल्दी जो है आपके नहीं जा पाएंगे, उसको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। और जो हल्के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फटाफट जो है आना जाना स्टार्ट कर देंगे। और साथ में वो जो आपने बोला ना वो पोरस बैरियर, तो जो जो भारी मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोरस बैरियर पर आकर के रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, क्योंकि वो मोटे हैं, वो नहीं पार कर पाएंगे। और जो हल्के और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो पार कर जाएंगे। तो इट इज अबाउट द मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हेवियर पार्टिकल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव, whereas लेसर वेट, लेस मास के जो भी पार्टिकल्स होते हैं दे फाइंड इट वेरी इजी टू मूव। तो इट इज अबाउट मास। आंसर क्या होगा इसका? मास, मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, समझ में आया? यस। So what property of gas molecule affects the speed at which diffuses? It is basically its mass। ठीक है,
अब व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? ये सब आप लोग कहीं लिख रहे हो ना, या बस मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ? लिख रहे हैं सर। लिख रहे हो क्वेश्चंस के साथ? यस। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन भी नोट डाउन करते हो या फिर मतलब कैसा आप लोग कैसे भी करोगे? क्वेश्चंस भी तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। you people have these questions with you? ये क्वेश्चंस हैं आपके पास अवेलेबल? यस सर है। उसका सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट बिलीव इट। तभी आज ओमार तो फटाफट सारे आंसर दिया जा रहा है। उसके पास नीचे जरूर वो चीट बुक है, चीट कोड्स हैं गेम के सारे। कुछ नहीं है सर मेरे पास। तो यू रिमेम्बर एवरीथिंग? यस। नहीं इट्स सर, गुड। रिमेम्बर भी नहीं है सर। आता है अब थोड़ा थोड़ा तो करना। इट्स गुड दैट यू रिमेम्बर। ओस्मान, व्हाट इज योर आइडिया? ओस्मान, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो बोल देना, है ना? तो आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर वाइज, ठीक है? चैप्टर चैप्टर हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है। तो आपका कब है ये आपका एग्जाम अभी? हेलो? 19th को। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज का समझ में आया? यहां से फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे हीलियम एज अ गैस। यस सर। या इसको भी चलो पढ़ ही लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। 5 मिनट और रुक जाओ। Helium is a gas used to fill balloons. It is present in air in very small quantity. Diffusion can be used to separate it from air. अच्छा, diffusion का process क्या होता है? What is diffusion? Sir, when a high concentrated as कुछ भी liquid moves to low concentrated liquid from a permeable membrane. हाँ, तो वो तो लिक्विड के केसेस में हो गया। गैसेस के केस में इन शॉर्ट इट इज समथिंग लाइक फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। वो लिक्विड के केस में है, और अगर गैस के केस में पूछेगा तो गैस में यही सेम डेफिनेशन चिपका देना, बस वहां पे गैस बोलना है आपको। यू हैव टू यूज द वर्ड गैस देयर, ठीक है? द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक? तो अभी ये क्या बोल रहा है? Helium is a gas used to fill balloons. It is present in the air in very small quantities. ठीक है? हीलियम एक ऐसा हवा है जो कि गुब्बारे में भरने के काम आता है, और ये जो है नेचुरली जो है एयर में, नेचुरली जो एयर अराउंड अस, जो भी हमारी एयर है सराउंडिंग में, उस पर बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। डिफ्यूजन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट इट फ्रॉम द एयर। अब विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन आप क्या कर सकते हो? इस हीलियम को आप एयर से सेपरेट कर सकते हो। ठीक? अभी नेक्स्ट व्हाट इट इज सेइंग, एयर एट 1000 डिग्री सेल्सियस इज ऑन वन साइड ऑफ अ पोरस बैरियर। ठीक है? एक पोरस बैरियर है, पोरस बैरियर एक ऐसा बैरियर बन गया है, तो उसके एक तरफ बहुत हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस का। ठीक? तो अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो क्या होगा? उसका मूवमेंट, जो पार्टिकल्स है हाई टेम्परेचर पे वो फटाफट फटाफट मूव करते हैं, राइट? द हायर द टेम्परेचर द मोर इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, राइट? राइट। The air which passes through the barrier has a large amount of helium in it. ठीक है? अभी जो एयर जो इस से पास हो रही है उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीलियम है। तो अभी ये क्या बोल रहा है? Why does the air on the other side of the barrier contain more helium? अभी अदर साइड, इस साइड में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इस साइड में आपका टेम्परेचर कम है, तो ये पूछ रहा है कि इस साइड में आपके हीलियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा क्यों है? Did you understand? यस सर। हाँ, तो ऐसा क्यों है? इस तरफ आपका हीलियम की कॉन्सेंट्रेशन बैरियर के इधर, जिधर टेम्परेचर कम है, उधर ऐसा क्यों है? सॉरी, इधर ज्यादा क्यों है? ज्यादा क्यों है? सॉरी, इधर बैरियर के इस तरफ, मतलब जिधर टेम्परेचर ज्यादा है उधर कम है, और बैरियर के इस तरफ आपका हीलियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
हीलियम जो है आपका डिफ्यूज मतलब पोरस बैरियर को एयर के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। हीलियम एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके एयर में जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस गैस का पाया जाता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉलोड बाय कार्बन एंड अदर गैसेस, राइट। तो जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में एक तो हीलियम एटम्स के मॉलिक्यूल्स लाइटर होते हैं, ठीक है, वो लाइट होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, इस वजह से वो जो है वो पोरस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं when it comes to nitrogen and oxygen. Since helium atom molecules, helium atom या helium के जो molecules हैं, they are having less density and less weight than nitrogen and oxygen molecules in the air, so they diffuse very easily. इस वजह से आपका वो पोरस मेम्ब्रेन से वो फटाफट पार होना स्टार्ट हो गए, और इस तरफ पोरस मेम्ब्रेन के इस तरफ आपका हीलियम की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई। ओके, अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? अभी मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि जिधर आपका टेम्परेचर अधिक होगा उधर आपका डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर में फटाफट मूव करेंगे, ठीक है। तो हायर द टेम्परेचर, हायर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। व्हाई? बिकॉज इन हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स मूव वेरी फास्ट, ठीक है। समझ में आया दोनों को? ओमार, ओस्मान चले गए क्या?